We shall be starting shortly, forming in just another 4 minutes time. So welcoming all our early entrants. Greetings from Eating India. This is the theme song of Tokyo 2020, and the Olympics has ended this morning. Sir, you need to reduce the music which is coming. Yeah. Just This is the Tokyo 2020 theme song of the Olympics, what is being played in the background. It's 15 hours. Namaskar. Hello and welcome to this maiden roundtable on eduSPORTS. And today is a very seminal occasion. The entire nation of 1 billion plus is in jubilation because the javelin throw of 87.58 meter by one of our avid sports person. It won the Olympic gold medal at Tokyo 2020. Tokyo has decided to keep the numerology, and it is
still Tokyo 2020, which could not be commemorated, which could not be organized last year because of the pandemic lockdown issues. So the entire nation is in jubilation, and today's jubilation is doubled up, and I would say it has got exponentiated because this is also a day of the Quit India movement, of our fabled freedom struggle. The freedom struggle which really inspired this nation to rise high from the ruins of European imperialism. And in 1947, India asserted herself and joined the Committee of Nations. And yes, on the sporting forefront, we are really trying our level best. And so today is a day to really commemorate our faculty of sports, and we have been joined in by a vast galaxy of sports educators from various educational institutions across the country. So we welcome you all, because today is your day, and today is a day to take another pledge to plunge into the futuristic frontiers of, I would say, augmenting India's sports to a phenomenal level. At Rethink India, just 4 years back in 2016, because reference abhi Tokyo 2020 ka ho raha hai. So in a conference, which you can see on your screens, it was a conference of the avid vice chancellors across the country. In 2016, we had unraveled this campaign called eduSPORTS. And the entire idea was as to how we can make sports as an integral component of our education, rather than sports being a co-curricular activity, how it can become a part and parcel of the entire educational stuff. And as you can see, we had the Honorable Vice Chancellor of Ramakrishna Vivekananda University from Belur, Swami Atmapriyanandaji, who inaugurated it with another galaxy of Vice Chancellors across. और वहां पे हमने एक बात कही कि भारत के जो स्पिरिचुअलिस्ट मॉन्क, जिनका 9/11 का उद्घोष हम लोग अभी कमेमोरेट करेंगे on the 11th of September, he used to say that you can better understand Gita by playing football, which gives you nerves of steel to understand the mighty message of Krishna. So somewhere or the other in the Indian ecosystem, we somewhere lost our virility somehow, and that's why we had an epoch of, I would say, destitution. And probably today is a day जब हम Quit India movement की भी बात कर रहे हैं कि let lethargy and let the kind of a colonial precepts which have really far taken us in a big way, they really leave us, they really quit us, and that's why today we have organized this roundtable. और यहाँ पर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कि यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम ओलंपिक की तालिका को देखें, the way the Olympic medal tally is there, तो दुनिया के जितने ताकतवर देश हैं उनके मेडल्स की टैली वो पैकिंग ऑर्डर हमें दिखता है. United States of America, which happens to be the most powerful nation on the planet, it is really on top league of at the first rank. People's Republic of China is certainly at level 2, and Japan, the tiny Republic of Japan, but then it is at number 5 in the overall rank. And see the packing order, but somehow or the other, hum Bharat mein, like our rank is somewhere down. We have to really go down, and we have to really see that we are at number 33 in the overall medals tally. That is what we are situated, a nation of 133 crores. ये हमारा मेडल टैली है. तो आज का जो हमारा मंतव्य है कि because Tokyo 2020 is closing today. Today is the closing ceremony. Japan is 3.5 hours ahead of us. The land of the rising sun, we all know about it. तो आज जो हमारे साथ इतना वृहद शिष्टमंडल जुड़ा है, this entire galaxy of immense, I would say, sports educators. तो आज का उद्देश्य यह है कि how we can bolster the sporting, I would say, sporting culture in the country, की जहाँ पे अभी sports को 4 साल में ओलंपिक आया, हमें एक गोल्ड मेडल मिल गया तो हम लोग cheer leaders बन गए. But after that what, and how we can make sports as a very, very integral component of our education, both school education as well as higher education. In some of the advanced countries, as you are the sports educators, that
they have programs in sports engineering, they have programs in sports management, they have programs in sports entrepreneurship. But somehow or the other, we have taken to the colonial sports of cricket alone, and the vast galaxy of the Olympic sports have somehow got missed out. We were so glad that during the course of this Tokyo 2020, we got a lot of representations from our vast galaxy of institutions that their students are really participating, joining up the Tokyo 2020. But how it can be, एक विजन कैसे हो सकता है कि भाई आईआईटी में जाना है, आईआईएम में जाना है, वो तो स्कूल का गोल है, बट ओलंपिक में जाना है, क्या ये बात, क्या ये भावना हम लोग एक कलेक्टिव रूप में रख सकते हैं? तो आज की इस राउंड टेबल का यही उद्देश्य है। और एक छोटी सी बात कि किस प्रकार से जो स्पोर्ट्स है वो हमारे दैनंदिन जीवन में भी, कक्षाओं में भी वो इस प्रकार की वैल्यूज को कैसे इंस्टिल कर सकता है, जिसको हम लोग बहुधा कह देते हैं संक्षिप्त में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बट वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है क्या? ये जीवन एक रंगमंच है, वो बात तो हम सुनते हैं, पर ये जो जीवन एक खेल का मैदान भी है, जिसमें हार और जीत को भी हमें एक इक्वानिमिटी के साथ हमें जीना चाहिए। तो आप सभी विज्ञ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के बीच आज हम इस राउंड टेबल का आगाज करते हैं, और मैं निवेदन करूंगा हमारे सबसे वरिष्ठ डॉक्टर राजेश शर्मा जी से, जो कि भारत के अजब है गजब है मध्य प्रदेश से, भोपाल से आते हैं, कि वो इस सत्र का शुभारंभ करें प्राध्यापकों की दृष्टि से, बिकॉज आप सीबीएसई के भी एक बहुत ही हायर पेडेस्टल पे हैं। हाउ वी कैन, बिकॉज ये समय वह भी है जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो हाउ दिस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हाउ दिस आत्मनिर्भर भारत, how all these narratives can be woven together, and so that when Olympics 2024 come in, we can somewhere soar high। और जो जेवलिन का थ्रो मारा है 87.54 मीटर का, वो हमारी मेडल तालिका में भी कैसे ऊपर बढ़े, वो एक राष्ट्रीय जोश हमारे स्पोर्ट्स एजुकेटर्स के द्वारा कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे स्कूल प्रिंसिपल्स उसको इंटीग्रेट कर सकें, उस सब की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। Over to Dr. Rajesh Sharma, one of the preeminent edu leaders of the country, to start off this session. Sir. Thank you so much, Dr. Raghav, Dr. Survi, and I must appreciate कि आपने स्पोर्ट्स को जो एक एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, जरूरी बात, उस चीज को शायद इस तरह से सांस दे दी है उस मोमेंटम को, कि गोल्ड मेडल लेके आए एथलेटिक्स में 121 साल के रिकॉर्ड के बाद ऐसा हुआ। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात, स्कूल लेवल पे अगर हम देखें, जितने भी जो अच्छे ओलंपिक कंट्रीज हैं, वहां पे वो क्या करते हैं, वो बच्चों को 3 साल से ट्रेन करना शुरू करते हैं। आप चाहे वो जापान की बात कर लें, चाहे चाइना की बात कर लें, हमारे यहाँ वो कल्चर, एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, मेरे ख्याल में, जैसे हमने, आप बड़ी अच्छी बात कही कि जैसे हमने आईआईटी खोल रखी है, हमें अभी उसी लेवल पे स्पोर्ट्स एकेडमी लानी पड़ेगी। और जो बच्चे बचपन से ही स्पोर्ट्स में टैलेंटेड हैं, हम वहां उनको ग्रूम करें, उनको फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल लेवल पे उनकी ट्रेनिंग हो, और वो उस चीज को सोच सके। क्योंकि एक ये चीज केवल परफॉर्मेंस नहीं होती। मुझे एक बिंद्रा का स्टेटमेंट याद आ रहा है, जब वो सेकंड ओलंपिक में नहीं जीत पाए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो ओलंपिक फाइनल में पहुंचते हैं थ्रो के लिए या शूटिंग में, लेकिन उस पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रेंथ और आपका परफॉर्मेंस, वेदर दे ऑल आर इन ट्यून और नॉट, वही विनर हो जाता है। एंड दैट कम्स बाय ट्रेनिंग। सो इट इज द टाइम, एंड वेरी वेरी राइट टाइम, वी मस्ट ब्रिंग इट इनटू द स्कूल करिकुलम। और हम स्पोर्ट्स को भी उसी तरीके से, कहावत तो बहुत पुरानी है वो, कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन हमारे यहाँ पे उसका उल्टा होने लग गया, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। तो उस चीज को, नैरेटिव को हमें बदलने की जरूरत है।
Thank you so Yes. much. Thank you, sir. Thank you, sir. You have really set the tone of today's roundtable. And coming from a very eminent academician, it really gives that sacredness, that sanctimonious space to sports in the country. We have also been joined in by a very, very special guest today. We have got Mr. Rajnikant Mishra from Sportathon, which is a company which specializes in promoting the sporting talent in the schools. Somewhere or the other, they are bringing in their own corporate might to really assist the schools to really take on sports in a big way, because the sports is a multi-billion business globally. If Europe has the entire football traditions over there, तो हम लोगों ने देखा कि अमेरिका 113 मेडल्स के साथ में ऊपर बैठा हुआ है, एंड दे हैपन टू बी अ 20 ट्रिलियन इकोनॉमी, और हम लोग चाहते हैं कि 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन अर्थ की भी बात आवश्यक है। तो कैसे हम स्पोर्ट्स के माध्यम से भी हम अर्थ का अनुसंधान कर सकते हैं? I would like to bring in Mr. Mishra to give his statements on how to make sports as an integral part of our education rather than just a co-curricular side kick. जो सर ने कहा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, and today is probably a time to somersault this entire paradigm, and sports को भी एक integral रूप में हमें देखने की आवश्यकता है. So over to Mr. Mishra to please address this august audience of the sporting legends of the country. Yeah. Thanks a lot, Mr. Raghav and Survi Madam. Am I audible? Yeah, Yes, loud sir, and very clear, much, please. sir. Yes, fine. Thank you. So, good afternoon, everyone, all the eminent physical educators and sports educators here. So, fine, as today is closing ceremony of Olympic as well. आज अंतिम दिन है ओलंपिक का, कल हम लोगों ने गोल्ड का एक मेडल लाया. And very nice topic it is, inclusive education. So जब हम इसकी बात करते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने भी जो अपने हमें बात, डॉक्टर राजेश सर ने भी जो बात बताई कि एक क्लास लगभग 3 साल की उम्र से जब स्टार्ट होता है, इंक्लूसिव की बात करें तो बीइंग ए स्पोर्ट्स एडुकेटर एक लार्ज विजन में अगर हम बात करें तो हम ये चाहते हैं कि कैसे रादर एक स्कूल में अगर सपोज 500 बच्चे हैं तो वी हैव टू स्टार्ट 500 में से किसी एक टीम के लिए अपने को 14-15 बच्चों की एक टीम बनानी पड़ती है. वी फोकस ऑन देन 14 or 15 किड्स. वी हैव टू स्टार्ट दैट, वी हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल 500 किड्स फर्स्ट. पहले हमें इंक्लूसिव का मतलब है कि सारे बच्चों को फिट करना है. स्पोर्ट्स मेडल दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग प्रोस्पेक्ट है. एक मेडल जीतना और ये सारी चीजें हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि कैसे स्पोर्ट्स का हम हर एक के जीवन में इंपॉर्टेंस है. यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग, हम लोग चाहते हैं कि मेडल्स आए, बट हम अपने लाइफ में जब बात आती है तो शायद हम स्पोर्ट्स से बहुत दूर रहते हैं. स्पोर्ट्स को ले लें, जनरलाइज फिटनेस की अगर बात करें तो वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. और जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से स्पोर्ट्स एजुकेशन अगर हम बात करें तो उसका काफी इंपॉर्टेंस है और एक करिकुलम के हिसाब से शामिल करना पड़ेगा. और फ्रॉम अ वेरी अर्ली ग्रासरूट, मतलब दैट मीन्स फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स वी हैव टू वर्क ऑन दैट. एंड as per the curriculum pedagogy, nursery to class 3, 3rd to 5th, we have to, then 5th to 8, 8 to 10. और उसके हिसाब से पूरे इंक्लूसिव दैट मीन्स कि अगर एक स्कूल की बात करें तो सारे बच्चों को पहले तो उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा और एक ब्रॉडर स्पेक्ट देखना पड़ेगा कि हाँ कैसे स्पोर्ट्स का बाकी बाद में फ्यूचर है. और हम ये मेडल्स के लिए जो काम करते हैं तो एक लंबा प्रोसेस है. अगर हम बात करें तो आज हम लोग लगभग 47 पोजीशन में है आउट ऑफ 200 प्लस कंट्रीज. वो भी एक गोल्ड मेडल लाने के बाद में, अदरवाइज हम लोग ऑलमोस्ट 67 के आसपास हमारी रैंकिंग की मेडल टेली में. तो यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा कि बिल्कुल ग्रास रूट से, ऐसा सर ने भी जैसे बताया, बिल्कुल ग्रास रूट से हमें काम करना पड़ेगा. स्पोर्ट्स को एक करिकुलम जैसे दूसरे सब्जेक्ट को करिकुलर, हम अभी को करिकुलर स्पोर्ट्स के पीरियड में अगर प्रैक्टिकल बात करें तो यही होता है कि स्पोर्ट्स के पीरियड में 40 बच्चों का क्लास है. 40 बच्चों के क्लास में जो हाइपर बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. कुछ बॉयज अपने ग्रुप बना के दूसरे ये पे साइड पे खड़े होते हैं. गर्ल्स अपने गर्ल्स 10 गर्ल्स को, तो ये नहीं होना चाहिए. रदर देन वो 40 मिनट्स का एक क्लास होता है वीकली. सबसे पहले तो कंपलसरी होना चाहिए पर डे ऑलमोस्ट एटलीस्ट 60 मिनट्स पर डे हर एक बच्चे के पार्ट में स्पोर्ट्स का एक अहमियत होनी चाहिए. उसके तरीके से हम बिल्कुल एक ग्रास रूट से स्टार्ट करें और एक लाइफ लॉन्ग लेके जाए. और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया. अभी
स्पोर्ट्स को काफी प्रोमोशंस हो रहे हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्सेस अगर आप आज से 10 साल पीछे जाओ तो भारत में मात्र 1 या 2 जगहों पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्सेस होते थे। आज लगभग 12 14 15 कॉलेजेस हैं जो कि स्पोर्ट्स, तो लोगों का रुझान इस तरफ आ रहा है। अब हम लोगों को इसको बिल्कुल ग्रास रूट से स्टार्ट करके एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे लेके जाना होगा और समय लगेगा। बस ये इन मेडल टेली डेफिनेटली विल बी ऑन इन द पोजीशंस बिकॉज है हमारे थैंक यू इंडिविजुअल्स गेम्स की अगर जी। बात करें तो उसमें काफी हमारे पास में स्कोप्स हैं। वो देख के ज्योग्राफिकल एरियाज के हिसाब से कि किस ज्योग्राफी में क्या बेटर हो पा रहा है। झारखंड अगर देखो तो आर्चरी के लिए बहुत बढ़िया है। हरियाणा की बात करें तो वहाँ के स्पोर्ट्स के लिए एक अलग माहौल है। साउथ में अगर देखें तो बैडमिंटन प्लेयर्स आ रहे हैं। हमें काफी टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में उस तरीके से आगे बढ़ते डेफिनेटली हम लोग मेडल टेली पे भी अच्छी जगह पे होंगे। जी थैंक जी यू। जी thank you Rajnikant ji for your lovely exhortation. He brings in that experience from the entire country because he happens to be one of the very few companies who have really dedicated themselves to augment the sporting quotient across our educational institutions. अब हम लोग हमारे साथ जो मैं कहूंगा कि खेलों के जो द्रोणाचार्य हैं आज बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं और आज ये उनका दिवस है, उनको कमेमोरेट करने का दिवस है और उनकी दृष्टि से कि कैसे हम स्पोर्ट्स को एक इंटीग्रल कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसा कि रजनीकांत जी ने भी कहा, डॉक्टर शर्मा ने भी कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट आल्सो इन द पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। कहीं ना कहीं वो टूटा हुआ है, वो बिखरा हुआ है, उसको साथ लाने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्वाति सिंघल जी। मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और इस राउंड टेबल को एड्रेस करें। वो क्या सोचती हैं इस विषय पर और किस प्रकार से खेलों को अपने स्कूलों का, अपने विद्यालयों का एक बड़ा अभिन्न अंग बनाया जा सकता है, कक्षाओं का भी अभिन्न अंग बन सके कि वो जो पाठ्यक्रम हमारे शिक्षक प्रवर्ग देते हैं उस पाठ के अंदर से भी कैसे वो खेल की, बिकॉज गेमिफिकेशन इज वन ऑफ द पेडागॉजीज व्हिच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, दैट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स कैन बी रियली taught to the students by the paradigm of gamification. So over to Swati Singhal जी, और थोड़ा अपना परिचय अगर देंगे सभी के लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा कि आप किस विद्यालय से आते हैं, आपका एक व्यक्तिगत परिचय, that will be really helpful. Over to Swati ji. Yeah. Thank you so much, sir. Good afternoon, everyone. So I'm a physical education teacher and I am working in Model Public School, Shalimar Bagh. Okay. So to elaborate more about my school, we are a good school. We have achieved so much in sports. We are almost state champions from last 10 years in the field of athletics, and we were the national champions, the CBSE national champions in 2019, the last competition that was held. And yes, to enhance it, one of our students, it is Kashish Lakra, she has just qualified for the Paralympic Games that are starting from 24th of August. So that is a major achievement on our part. And in our school, see, to talk about my school, our principal is very supporting. So yes, we have achieved so much in sports because we give students the opportunity to show their talent, to come up, to come across us, and they are given individual opportunities so that they can participate in sports. They can participate in different activities. We have been implementing this from a long time that yes, we are providing students with sports periods. We are giving them periods for activities. But as a whole education policy, I feel that many things are, they need a change. Like sir just mentioned that it has to be implemented mainly at the grassroots level. We don't need to wait that a child reaches 11th class and starts learning about physical education. It needs to start from preschool. They should be aware that yes, what are different games, what are the different opportunities that they can enhance in the coming future. So it needs to start from an early stage. The first thing is that it has to be implemented from preschool onwards so that children learn, they develop their gross motor skills at a very early stage. Like when we talk about the medal tally, yes, China, USA, it is very easy to compare that. We are nowhere, means they are nowhere in our comparison when we compare it to the population. But the facilities and the curriculum that they are following, like I was reading an article today about the Chinese education policy, and it showed that
they are implementing athletics, they're implementing gymnastics, they're implementing so many different activities beginning from preschool only. So that is the thing that makes them higher in the middle tally, and we are lower. So yeah, it needs to be done at the grassroots level. As a physical education teacher, I am dealing right now with the preschool. I am with the primary department. So we are already working in that direction, but I hope the new education policy enhances it more further. And we are going to be sure we are going to be at the top very soon. But yeah, we need to start working from today and aim at the next 12 or the 16 or the 20 years to reach there. So the work has to be done starting from. थैंक यू स्वाति जी, आपका जोश और आपका जो कमिटमेंट है स्पोर्ट्स के प्रति वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और जिस प्रकार से मॉडर्न स्कूल शालीमार बाग की मैडम अलका कपूर, द वे शी लुक्स आफ्टर द एंटायर गैमट ऑफ थिंग्स, इट्स रियली कमेंडेबल। और आपके विद्यालय से एक विद्यार्थी टोक्यो पैरालंपिक्स में भी गए, तो ये बहुत ही फख्र की बात है, बिकॉज this is what will really bring about that sporting revolution in the country, which is much needed. और बहुत ही ज्यादा टॉप डाउन पॉलिसी से ज्यादा ये जो छोटे छोटे ग्रास रूट्स इनिशिएटिव्स हैं एट स्कूल लेवल, एट एन इंडिविजुअल लेवल। अभी भी कोई मेरे को बता रहे थे कि there is a lot of criticism, there is a lot of gap in the country still there. All the limelight is hogged by, say, a limited number of sports which have got a larger commercial bandwagon associated. पर ये हमें बनाए रखना है ये उत्साह, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसको विद्यालय स्तर पर अगर इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा तभी स्पोर्ट्स का एक बड़ा स्वर्णिम भविष्य हो सकता है, बिकॉज इट्स अ 360 डिग्री कर्व विच इज रिक्वायर्ड. वी हैव गॉट अ वेरी अमेजिंग गैलेक्सी विद अस. मैं दिल्ली से सीधा बंबई जाना चाहूंगा और फिर मैं नवी मुंबई जाऊंगा उसके बाद में. आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर रेन कुमार जामवाल जी, who has joined us from Bombay Scottish School Powai. So IIT Powai, जो पवई झील है उसके आसपास IIT, हम लोग IIT के बैकग्राउंड से आते हैं, तो सालाना दिसंबर के महीने में एक इंटर IIT मीट होती है, स्पोर्ट्स मीट होती है. तो IIT सिस्टम ने इस बात को काफी रखा है, पर IITians कितने ओलंपिक्स में गए उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है, because that's a different Olympics these institutions work upon. But yes, various classes of institutions have to really leap forward to really make that javelin throw. एक बड़ा ही symbolic है, भाला फेंका 87.58 मीटर पर. युधिष्ठिर ने भी पांडवों का भाला फेंकने में हमारे महारथी बड़े सिद्धस्त हुआ करते थे. तो over to रेन कुमार जामवाल जी as to what he thinks about this entire topic. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को गुड आफ्टरनून. और सर जैसे कि आपने बताया कि नियर बाय IIT, आपने सही गैस लगाया. आई स्टे नियर बाय IIT ओनली, और झील के बिल्कुल ऑपोजिट में हूँ. और जैसे कि आपने बताया IIT एवरी ईयर कंडक्ट्स द स्पोर्ट्स आल्सो, इंटर IIT, ऑल IIT लाइक कानपुर IIT, दे आर हैविंग one competition every year. So all IITs participation are coming here, IIT Bombay head office. So it is good for there also. But as a जैसे कि आपने बताया बच्चों के लिए ग्रास रूट से होना बहुत जरूरी है. Then only they will come to know that all the events कैसे करना है, कहाँ जाना है, सभी को उनको जानकारी होगी तो they will start this. Thank you जामवाल जी. वी हैव आपके पवई से ही सटा हुआ नवी मुंबई है, और वहां पे नवी मुंबई एंकर वाला एकेडमी के स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि बड़े खिताब प्राप्त किए हुए हैं. गिनीज बुक और लिम्का बुक में भी उनका नाम है. बड़ी ही विशिष्ट विभूति आज हमारे साथ जुड़े हैं. मैं न्योता देना चाहूंगा प्रदीप सिंह जी को कि वो इस सत्र को संबोधित करें और अपने बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि एक बड़ी ही हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा है ह्यूमिलिटी की. वो उसी की भी अति है कि हम लोग इतने बड़े बड़े हमारे द्रोणाचार्य गुरु हैं, यहाँ पे खेल के अपने बारे में बोलना उन्हें थोड़ा सा लगता है कि भाई अगर हम उतना शिखर पे नहीं पहुंचे तो अपनी बात नहीं कहेंगे. पर वो जो कहते हैं, मनीष सिसोदिया जी ने कहा जब हमने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का 83वां जन्म जयंती दिवस मनाया, 108 वाइस चांसलर एक छत्र के नीचे थे, बोले शिक्षा की बात होनी चाहिए, सरकारों में शिक्षा की बात को प्रधानता से करनी चाहिए. तो मैं उन्हीं के उस वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि खेलों की बात भी शिक्षा में होनी चाहिए.
And that is what this eduSports initiative at Rethink India is all about. How sports can be leveraged for education, not just as a sidekick, but a very, very integral component of our learning outcomes, our learning dimensions of it all. Over to Pradeep Singh ji. Very good afternoon, everyone. My name is Pradeep Singh, and हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कर्नाटका बेलगाम में किया था, जो कि स्केटिंग में किया था। हमने हमारे बच्चों ने 72 आवर्स नॉन स्टॉप स्केटिंग किया था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी मैं जो टॉपिक पे आना चाहता हूँ वो हाउ टू डेवलप इन इंडिया स्पोर्ट्स। जहाँ तक मेरा मानना है सर, कि जितना हम एजुकेशन में अपने कंट्री में एजुकेशन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि सर ने बोला कि एजुकेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसका हम 30%, मेरे हिसाब से 20% भी डिस्कस हम स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं करते। पहली बार मेरा ऐसा मानना है कि 50% एटलीस्ट 50% वहाँ पे स्पोर्ट्स के इक्वलिटी देना चाहिए, और 50% स्पोर्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन करना चाहिए, जो मेरे स्कूल में ऑलरेडी जो मेरे ट्रस्टीज है वो रखते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हम आज हमारे स्कूल में समझो कि नहीं कुछ तो 8 से 10 बच्चे 12 बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, 10-20 बच्चे एथलेटिक्स खेल रहे हैं। कुछ हमारी 3 टीम हर साल आईसीसी बोर्ड के और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ये सब स्टेट चैंपियनशिप वॉलीबॉल खेलते हैं। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में वो सोचते हैं। बास्केटबॉल की टीम में इस ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में वो सोचते हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है जो सपोर्ट करते हैं। बट दिस सपोर्ट वी नीड ऑल ओवर इंडिया इन ऑल स्कूल्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमको क्या चाहिए, ग्रास लेवल रूट पे हमने बात किया कि ग्रास लेवल रूट पे बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए। बट वो ग्रास लेवल रूट पे जब बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, वो बच्चों के कौन से बच्चा कौन से स्पोर्ट्स के कौन से बच्चे में कौन सी स्किल है, वो हमको पहचानना बहुत जरूरी है। हर बच्चे को एक ही गेम खिलाते हुए हम बैठेंगे तो वो बच्चे के कौन से बच्चे का कौन सा स्किल है वो हमको पता ही नहीं चलेगा। और वो रॉन्ग गेम अगर वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से खेलते रहेगा तो उसमें वो डेवलप नहीं होता, जो कि इंडिया में अक्सर होते रहता है। अगर हमारे पीरियड में 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, पेरेंट्स को पता नहीं है, अच्छे से टीचर्स को गाइडेंस नहीं कर पाते, तो वो सारे बच्चे एक ही गेम खेलते बैठते हैं, या कुछ खेलते हैं या कुछ नहीं खेलते, और वो वहाँ पे उनका टाइम जस्ट निकलते जाता और वो गेम से दूर हो जाते हैं वो बच्चे। ऐसा मेरा मानना है। तो वहाँ पे पहले सबसे बड़ा जरूरी है कि स्कूलों में पहचाना जाए कि कौन से बच्चे को कौन सा गेम सूट करता है, जो कि बाकी कंट्रीज में, चाइना में या जापान में जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ पे वो चीज किया जाता है। वहाँ पे वो पहचाने जाते हैं, वो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं कौन से गेम के लिए कौन से बच्चे को डेवलप किया जाए। तीसरी चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे कंट्री में जो करना चाहिए, जो गवर्नमेंट को सोचना है, जो इम्प्लीमेंट करना है गवर्नमेंट को, सारे स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज ज्यादातर है 10-20% जो हमारे कंट्री में है जो दिए जाते हैं, वो सब बड़ी स्टेट में बड़े सिटीज में दिए जाते हैं। रूरल एरिया में वो फैसिलिटीज है ही नहीं। रूरल एरिया, मैं एक रूरल एरिया से आया हुआ स्टूडेंट हूँ, जो कि मुझे फील हमेशा हुआ कि मुझे अगर ये सब फैसिलिटीज मिलती थी तो मे बी आई एम डूइंग बेटर देन दिस। ओके, तो वो फैसिलिटीज रूरल एरिया में नहीं मिलती, जो कि रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे बच्चों का, जो बच्चे अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाते और उनकी स्किल वहाँ पे मर जाती है। जो बच्चे रूरल एरिया से निकल के, जिसके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, रूरल एरिया से निकाल के उनको ले जाके उनको स्किल कराते हैं, उनको ट्रेंड कराते हैं, और वो वही बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं आपको आज ओलंपिक में। चाहे जो प्लेयर आज ओलंपिक के देखेंगे तो रूरल एरिया के बच्चे, जिनको उनके पेरेंट्स के सपोर्ट से, उनके पेरेंट्स ने भले खेती किया हो, उनके पेरेंट्स ने भले अपने आप को किसानी की हो, लेकिन अपने बच्चे को खिलाया है, पूरा सपोर्ट दिया है, वही बच्चा आगे बढ़ा है। तो वो चीज हमारे देश की, जो हमारे कंट्री है, हमारा जो गवर्नमेंट है, उनको सोचना चाहिए कि हमको रूरल एरिया में भी स्पोर्ट्स के, जैसे एजुकेशन के एक वे में काम कर रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स वे में भी काम करना है। अगर हमको ओलंपिक में फर्स्ट आना है तो, अगर ओलंपिक में के पायदान पे हमको ऊपर रहना है तो। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं सोचता हूँ, ये हमारा सोसाइटी के अंदर, हमारे सोसाइटी सिर्फ स्कूल का या गवर्नमेंट का लुकआउट नहीं है, ये हमारे सोसाइटी के अंदर हमारे पेरेंट्स का, हमारे सोसाइटी का लुकआउट है। अगर हमारा सोसाइटी स्पोर्टिव बनेगा, आज समझो कि गवर्नमेंट मुहिम चला रही है और गवर्नमेंट की तरफ से मुहिम चल रहा है स्पोर्ट्स के ऊपर, लेकिन अगर हमारा सोसाइटी उसके लिए अवेयर नहीं होगा, अगर हम अपने बच्चों को अवेयर नहीं कर रहे स्पोर्ट्स को लेके, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। हमको हमारे सोसाइटी को, हमारे बच्चों के पेरेंट्स को अवेयर होना है, और उनको जितना उनको एजुकेशन के ऊपर वो ध्यान दे रहे, उतना ही
हमको अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान दिलाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको मेडल के लिए या ओलंपिक में जाने के लिए ध्यान देना है, उनको वो एबिलिटी देना है कि वो अपने पूरे लाइफ में हमेशा स्पोर्टिव रहे, स्पोर्टिव स्पिरिट से रहे और वो एक अच्छा नागरिक बने देश के। तो उसके लिए भी हम अपने सोसाइटी को अवेयर करना बहुत जरूरी है। फैसिलिटीज के साथ साथ पेरेंट्स का जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स के अंदर होगा उतना ज्यादा कंट्रीज में स्पोर्ट डेवलप होगा, मेरा ऐसा मानना है। अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जो भी बच्चा हम देखते हैं, आज मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं 2-4-6 बच्चे आते हैं, आने को बच्चे 10-20 आते हैं, 2-4 दिन में 4-6 बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बच्चा खेलना चाहता है लेकिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स अपना टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चा आ नहीं पा रहा है, तो बच्चा नहीं खेल पा रहा। अगर जो भी पेरेंट्स, जो भी प्लेयर आप देखेंगे उनके पेरेंट्स ने उनको टाइम दिया, प्लेयर जितना कोच तपस्या करता है उतना अगर पेरेंट्स तपस्या कर रहे हैं उनके साथ, उनको टाइम दे रहा है, उनको फैसिलिटीज दे रहा है, तो वो प्लेयर डेवलप होता है। जहाँ पे भी हमने अभी बोला ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अगर पेरेंट्स का ये चीज मेंटेलिटी हो गया, खेलोगे बनोगे खराब, तो इंडिया फर्स्ट नहीं जाएगा। पेरेंट्स का मेंटेलिटी हो जाओ, पहला होना चाहिए खेलोगे कूदोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये वाह, लेट्स गिव अ बिग हैंड वाले हैं। अगर वो लाजवाब पेरेंट्स नहीं बनेंगे आप, तो आपकी कंट्री फर्स्ट नहीं आएगी सर। तो हमको अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को लाजवाब बनाना पड़ेगा। लवली मेरा ऐसा मानना है कि तब जाके हमारी कंट्री फर्स्ट आएगी। चाहे आज हम जैवलिन थ्रो प्लेयर्स देख ले, चाहे आप कुश्ती प्लेयर देख ले, चाहे आज आप हॉकी टीम देख लो, उसमें से ज्यादातर बच्चे रूरल एरिया के हैं और उनके पेरेंट्स ने तपस्या किया वो बच्चों के लिए और वो बच्चे ऊपर आए। जी मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को 50-50 लेना चाहिए। स्पोर्ट्स के जब बच्चे हैं, जितना एजुकेशन के बच्चों का हक है उनको नौकरी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, उतना स्पोर्ट्स के बच्चों का भी देना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स के बच्चे हैं तो उनको इक्वल एक जगह लाके उनको इक्वलिटी दे दें कि नहीं, हाँ ये गोल्ड मेडलिस्ट है, आपने अपने 90% मार्क्स लाया तो आप इक्वल हो जाते हो, उतनी इनकी अपॉर्चुनिटी इनको भी देना चाहिए। अगर वहाँ पे उनको सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा ही रखेंगे और उनको वहाँ पे नौकरी देते समय 50% देखने लगेंगे 60, क्योंकि उन्होंने अपनी टाइम स्पोर्ट्स के लिए दिया है, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई में नहीं टाइम दिया, उन्होंने दो चीज किया, अपने एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स भी लेके चले। तो अगर उनको वहाँ पे मेडल की टैली और वो सब अगर साथ में देखेंगे तो ऑफकोर्स पेरेंट्स भी अवेयर होंगे और हमारे देश के स्पोर्ट्स अपने आप डेवलप होना चालू होगा। और ये टोक्यो ओलंपिक के बाद वैसे भी हमारा स्पोर्ट्स जो टोक्यो ओलंपिक में बहुत सारे स्पोर्ट्स में हमारे प्लेयर ने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो गोल्फ हो, चाहे वो आर्चरी हो, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, बहुत सारे गेम में हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया। एथलेटिक्स हो, एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छा किया हमारे प्लेयर ने। जीते हारे वो अलग की बात, लेकिन दिस ओलंपिक आवर कंट्री प्लेड वेल। तो उसके लिए कोविड होने के बाद भी इतना अच्छा अगर उन्होंने परफॉर्म दिया तो नेक्स्ट ईयर ऑफकोर्स हमारा डबल डिजिट में जाने वाला है मेडल टैली, और ऑफकोर्स हम इससे ज्यादा बेटर हम परफॉर्म करेंगे। बट हमको हमारे सोसाइटी को उनको चेयर अभी से करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट, हमारे बच्चे को अभी से उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट ईयर हमको और ऊपर आना है तो नेक्स्ट ईयर ओलंपिक के टाइम चेयर करके कुछ नहीं होगा, अभी से उनको फैसिलिटीज के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। अगली लड़ाई का 5 साल पहले से तैयारी करना पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। Wonderful exhortation, Pradeep sir. And I would like to add here that the viewing of sports, the vision of sports is just not as a co-curricular. It is a very integral part of education. You know, I had a very good experience when I was in standard 6 and I was in Great Britain, and in one of the schools. So there was a marathon race, and you won't believe it, with all the British and the European girls. So, and the boys, I had the good opportunity of winning the gold medal in a 400-meter marathon race. So, you know, Indians, we are very, very, we should be very, very confident in the way the importance of sports has to be asserted in the school curriculum, you know, that, you know, it builds the team spirit, the fighting spirit in life. And, you know, so many other attributes we're learning from sports, you know, which are making the personality holistic as a whole. Total, you know, you become a complete individual, health, fitness, everything. There are so many advantages. So it's not just a core curricular, it's an integral part of education. I think that's very important to assert, and which the Europeans and the Western schools are doing. And girls particularly, we need to encourage, you know, because a strong woman she's garnering the society. She's the epitome of it all. She's the pivot of it all.
So I think that is also another important point. I'm very pleased to see Swati Singhal ji from MPS, and how beautifully Kashish Lakre is a girl student who is in the Paralympics. It's a great moment of pride for our country. Lovely, lovely. और आप लोग अभी अपनी screens पर जो देख पा रहे हैं, because Dr. Survi comes from that mental health paradigm, the physical health paradigm as well. कोविड में जो इम्यूनिटी की बात रही कि भाई हम लोग आज जो एक जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता जा रहा है, तो ये आरोग्यता की दृष्टि से भी जो स्पोर्ट्स है, द फिजिकल एक्टिविटी, उसका बहुत 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 ज्यादा महत्व है. एंड आवर स्क्रीन टाइम एंड इट हैज एनहांस्ड लाइक एनीथिंग. तो ऐसे समय पर जो शरीर का, एंड दैट इज व्हाट स्वामी विवेकानंद टॉक इज ऑल अबाउट, कि जो एब्स्ट्रूज फिलोसॉफिकल प्रिसेप्ट्स ऑफ द एपिक भगवद गीता आपको तब ज्यादा समझ में आएगा जब आप फुटबॉल के मैदान पर आपने दौड़ लगा दी हो. तो तब जब आपको बैठोगे तब आपका एकाग्रता बढ़ेगी. और इसी दृष्टि से हम लोगों ने इसको एक सर्वांगीण रूप से देखा है. एडू स्पोर्ट्स इनिशिएटिव को काफी समय से हम इसका प्रयास कर रहे हैं. एंड यू कैन सी दैट दिस वाज 4 years बैक, इट वाज इन इंडियन इंटरनेशनल सेंटर, जहां पे सभी ने स्वीकारा कि भाई स्पोर्ट्स हैव टू बिकम अ वेरी वेरी इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ इट. बिकॉज बहुत सारे ऐसे शिक्षा के आयाम हैं जो आप क्लासरूम लेक्चर से नहीं सिखा सकते हैं, जो आप थियोरेटिकली नहीं सिखा सकते. वो एक लेबोरेटरी है, खेल का मैदान एक प्रयोगशाला है. जैसे हम रसायन विज्ञान, भौतिकी या अन्य प्रयोगशालाओं में जाते हैं, तो जीवन की प्रयोगशाला के रूप में अगर हम खेल के मैदान को देखें, तो जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे तत्व निकल के आते हैं. हार्नेसिंग पैशन कैसे प्रदीप्त किया जाए किसी बालक में, वो स्पोर्ट्स कर सकता है. डू इट राइट, एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ गोल करना है या जो भी थ्रो करना है, हर जगह डू इट राइट, ये बात उसमें सिखाई जा सकती है. एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. आज यंगस्टर्स में एक बड़ी ही बात है कि रिजेक्शन को नहीं स्वीकार कर सकते हैं. अचानक कोई बात हो गई, हार गए या जीत गए, तो एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड, जिसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के रूप में हम लोग देखते हैं, तो वो भी स्पोर्ट्स के माध्यम से आ सकता है. मेकिंग इट हैपन एंड वॉचिंग इट हैपन एंड वंडरिंग व्हाट हैपेंड, व्हिच आर यू. तो तीनों की तीनों चीजें कि मेकिंग इट हैपन, watching it happen and wondering what happened. And in fact, I tell you that even in our IITs and best of the institutions, जो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा प्रवीण होते हैं, वह एकेडमिया में भी उतने ही प्रवीण होते हैं. पर क्या है, जो सभी गुरुओं ने कहा, आप सभी ने, कि इट हैज टू स्टार्ट अर्ली. केवल IIT में जाके 12वीं के बाद जाके आपने बहुत सारी आपके शरीर में कमियां हो जाती हैं. दिस कल्चर हैज टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्री स्कूल. स्वाति जी ने जैसे कहा, बिकॉज फ्रॉम देयर that character, that culture would really come into place. And that's where the role of the educators, I would bring in Dr. Jigna Khoyani further from an administrator's perspective. क्योंकि प्रेम सिंह अपने प्रदीप सर ने जो बातें कही, वो एक एकांगी रूप से बात कही, पर एक प्रशासक को, एक प्रशासिका को, एक महिला भी है, वो स्वयं में एक डॉक्टर भी है, और एक लार्जर वे में एक आगे के आयामों को भी देखती हैं. तो ट्रेन, स्टडी, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, दिस इज व्हाट अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज लव्स. सो इस तरह की विभूतियां, जो बहुत सारी वैल्यू एजुकेशन की बात हम करते हैं, बहुत ही सहज में खेल के मैदान के, खेल की प्रयोगशाला में हमें प्राप्त हो जाती है. तो बिफोर आई ब्रिंग इन डॉक्टर जिग्ना खोयानी, वी हैव विद अस श्री रमेश कुमार जी. I would like to request him to share his experiences, and then I would request Madam Khoyani to explain more what Dr. Rajesh Sharma started off as to how the academic institutions can really take things further and forward. Over to Mr. Ramesh Kumar ji. Yeah. Thank you, sir. Namaskar, everyone. I'm a physical education teacher since last 27 years. Wow. Yeah, and with the different roles in different schools. After listening to some of my friends here, would like to add on 2 points, which I feel like from my side, my opinion on this. One is the trend. I am from a place, a small place from district Bhiwani, Haryana, which is known for 2 things. One is known as a mini Cuba for boxers. And if I remember the gentleman who is no more now, Mr. Surjit Singh, he used to be a PE teacher, simple PE teacher, and created 12 pole vaulters who created national records. Now, I went to that place where entire training was going on. I saw that what kind of equipments they were using. I'm talking about 10 or 15 years back. He was only using the bamboo pole for pole vault and with a straw down as a mat. There was no system of mat because every school cannot afford the mats and all.
And a very funny episode took place where one of the parents took his son to for the training under him and requested him, "Sir, my son is very keen for the pole vault." He refused. He refused because I have already set up, in coming 10 years, these 10 people would be creating records. So if you can wait for 13 years, we can add him. But then the gentleman, the father of Vijay Pal, I'm naming him out because he's a very good friend of mine who had a record of Indian pole vault for approximately 10 to 15 years. Then after a year of training, he broke the record, national game Trivandrum. So here is motivation. And another thing is, if I say that there is only person in an area which I'm talking about, the small city Bhiwani, the Bhim Award, the Arjun Award and the Dronacharya Award. That is a Captain Hawa Singh, who is no more. But he has set trained in the city where, like, you'll find the little ones on the road, you'll find them, they are moving like this. When you move out in the morning towards the Vash College, which is a sponsored college like by a management, and a Bhim Stadium, you'll find every small child, 6-7 years, they're moving their hands. So this is what trend set. So because of that trend, we got Vijender Singh. Because of that trend, we got Pangal, who went to Olympics. And there was a set where we found that all the boxes, they were from this Cuba, mini Cuba, that is a Bhiwani. So this is what trend is. Another approach which Pradeep Singh was indicating too, that is a very good thing, like at grassroots. In a grassroots, what I say, there should be a scientific approach to pick up the kids. Say, for example, he has also given an example of China and all. Yes, they start at a very early age, but same time, they also go with scientific approach, what muscle fiber, this X and Y boy or some boy they are having in more. Accordingly, they put him to the endurance activities and they put him to the explosive activities. There are lots to do. There are lots of many things. And one more last point. During my tenure of 27 years, I found that there are different administrators. I'm working with Aga Khan Academy. I worked with the 9 schools. One more example, I spent my 5 years in Indonesia, Bali, where I found the trend which I'm talking about, the boxing and pole vault. In Indonesia, I used to take my little one to play badminton, where there is a trend. They take very easily, even if you find like 70 kilo of man, very heavy, not 70, is more than that, but his skills are so refined, he plays better than a person who is more skilled compared to us. So this is what they have a trend. Everyone, right from the, if they're 70 years old, 60 years old, 10 years old, all they are playing badminton. So this is what they have set a trend, and there are chances of getting more badminton players as we are exposing everyone for this. Thank you, sir. Thanks a lot. I think Ramesh Kumar ji has really given that practitioner's perspective कि कैसे Olympians को बनाया जाता है, कैसे हरियाणा का जो पूरा खेल का माहौल है। और ये बात रजनीकांत जी ने जो कही उसी को आगे बढ़ाते हुए है कि भारत के जो जियो कल्चरल लोकेल्स तो हम कहते हैं, संस्कृति का राष्ट्र तो कहते हैं, पर यह स्पर्धाओं का भी राष्ट्र है। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द वेरियस जियो स्पोर्टिंग जोन्स ऑफ द कंट्री and we can develop sporting infrastructure depending on our cultural traditions over there कि भाई मुक्केबाज अगर उस मिनी क्यूबा से आ रहे हैं तो कुछ कारण है वहां का, तो कैसे हम उस मुक्केबाजों का वो गढ़ वो बना सकें। I think that lies at the policy planners level, Sports Authority of India and other eminent bureaucrats out there, and it was a major shift when the Prime Minister named the highest sporting honor in the name of a sports person. सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई जिस विधा का जो प्रवीण है उसके नाम पर ही बात होनी चाहिए। So I think that is a major shift which is happening, and with this kind of उत्साह, स्वाति जी का उत्साह हमने देखा, प्रदीप सिंह जी का उत्साह देखा, रमेश कुमार जी ने जिस प्रगाढ़ता से बात करी है, तो I think our sporting future is really very very in great hands. मैं निवेदन करूंगा और भी हमारे जो प्रतिभागी हैं, रमन झा जी थे बहुत समय तक कैमरा ऑन थे, तो रमन झा जी आप अगर अपनी बात साझा करना चाहें
And I would please open up your cameras, and whosoever wants to come in and contribute. तो यज्ञ है, सभी की आहुतियां लगनी चाहिए, और जब हम सभी मिलकर इस डॉक्टर राजेश शर्मा इज रेजिंग हिज हैंड. डॉक्टर शर्मा प्लीज. मैं एक और इसका बात करना चाहता है. एक और एंगल है राघव जी कि जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, लीडरशिप की, एक मॉरल वैल्यूज की, आप ये मान के चलिए स्पोर्ट्स में बहुत आसानी से हम वैल्यूज, मॉरल और लीडरशिप तीनों चीजें डेवलप कर सकते हैं. और मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, लीडर्स आर मेड इन द ग्राउंड, नॉट इन द क्लासरूम. Because I'm telling you fact. Because what happens in the ground, you learn how to lose. Yes. हम आजकल देखते हैं इतने सारे सुसाइड होने लग गए बच्चों में, एवरीवेयर. बच्चे आजकल फेल्यूर ले ही नहीं सकते 1 मिनट के लिए. तो जब तक कि हम स्पोर्ट्स को इंटीग्रल पार्ट लाइफ का नहीं बनाएंगे, हमें हारना आना चाहिए जितना जीतने आना चाहिए. लेकिन जब हम ग्राउंड में ही नहीं जा रहे तो हारने जीतने की तो बात सीखी कहां पर. तो मेरा तो बहुत ही प्रमोटेड लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, सो दैट हैज बीन देयर, एंड आई एम टेलिंग यू वी कैन डेवलप द काइंड ऑफ generation which will be really good leaders, and they will be from the ground. So that's what I wanted to add. Thank you. Thank you. Raman Jhaji, would you like to come in and share your experiences, and would you like to contribute? जी, आपको अनम्यूट करना होगा. या थोड़ा जी रमन जी. हेलो, नमस्कार सर. नमस्कार मैम. नमस्कार सभी को नमस्कार. आई एम एथलेटिक कोच रमन झा, दिल्ली गवर्नमेंट फ्रॉम छत्रसाल स्टेडियम. अभी जस्ट एक फोन आ गया था, इसलिए मैं वो हो गया था, कैमरा मैंने ऑफ कर लिया था. मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 15-20 साल से मैं स्टेडियम में हूँ, और 5-6 बच्चे हमारे ओलंपियन है. जैसे रवि दहिया का भी मेडल आया, बजरंग पुनिया का मेडल आया, सुशील पहलवान जी का आया था, योगेश्वर दत्त के उनका मेडल आया था. तो हम वहाँ बड़ी बारीकी से स्पोर्ट्स को देख रहे हैं. पहले एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर भी काम किया, और अभी राकेश शर्मा जी ने बोला, बहुत सारे सभी ने अच्छा बोला. बेसिक चीज यही है. लेकिन हम जब कोचिंग की फील्ड में आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई स्पोर्ट्स को हम जब भी बढ़ा सकते हैं कि अब सपोज हम यहाँ पे 15, 20 या 30 जने हैं, तो 30 में से क्या हम में से कोई सोच रहा कि हमारा बच्चा ओलंपियन बने. लेकिन हम 30 के 30 पेरेंट्स एज ए गार्जियन ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, IAS बने, चीजें करे. जिस दिन अगर हम ये चीज ला पाएंगे ना, और दूसरी चीज क्या, कोचिंग में जैसे कोई बच्चा 2 साल या 3 साल हमारे पास कोचिंग के लिए आता है, तो पेरेंट्स की ना उम्मीदें बन जाती है कि भाई कैसा कर रहा है बच्चा, इसे 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए स्टेडियम आते हुए, क्या है. लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 12 साल 15 साल बाद एक जनरल सर्टिफिकेट मिलता है क्वालिफिकेशन की, आप 12th पास है. तो कल्चर में ये चीज भी डालना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी, कोचेस को भी, समाज को भी पेशेंस के साथ. और एजुकेशन क्या है, अगर बच्चा जो सरले मुंबई वाले सर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि भाई हमें क्या सोचना है. सोचना ये है कि अगर 10वीं तक बच्चा है तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, 11th 12th में स्पेसिफिक होके साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी उसकी फील्ड है वहां जाता है, आफ्टर ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद MA करता है. यही चीज है जब बच्चा प्री स्कूल में है. जैसे कि स्वाति सिंघल है, सी इज माई स्टूडेंट, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विनर है, दिल्ली की रिकॉर्ड होल्डर है गर्ल. उसने ही जस्ट मुझे इन्फॉर्म किया कि सर ऐसे ऐसे क्लास चल रही है, अगर आप कुछ बोलना चाहें. तो क्या है कि हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई 3 साल का बच्चा क्या खेलेगा. एजुकेशन पॉलिसी में वो ऐड होनी चाहिए. अब 3 साल का बच्चा हॉकी स्टिक तो नहीं खेलेगा ना, उसकी स्किल है. 4 साल का बच्चा क्या खेलेगा, 5 साल का बच्चा क्या खेलेगा, या उसकी क्लास 6 क्लास में है तो उसे कौन सी गेम दी जाए या एक्टिविटी कराई जाए जिससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम हो सके. तो वो प्री स्कूल से ही स्टार्ट हो जाएगा. ये बहुत अच्छा आपने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है, बहुत ही अच्छी चीज है. और हमें स्पेसिफाई करके ही बच्चे को आगे ले जाना पड़ेगा कि भाई आपकी ये गेम की डिमांड कि स्पेसिफिक स्पोर्ट्स तो उसे मिलेगा. जैसे आई एम एथलेटिक कोच, तो मुझे पता है, मैं भी जेवलिन थ्रो कराता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल पे जीत रहे. तो हमें पता है कि भाई 15-16 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका इवेंट ही है.
वो हम डिसाइड करेंगे आफ्टर 16 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, कि भाई आप स्प्रिंटर बनोगे, आप थ्रोअर बनोगे, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर बनोगे, या आपका इवेंट स्पेसिफाई ये है। हमें इस चीज पे भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जैसे 10th के मार्क्स देखते हैं हम 10वीं क्लास का, कि भाई बच्चे के एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि भाई 75 लाओगे आपको साइंस देंगे, मैथ में इतने होने चाहिए। यही चीज हमें स्पोर्ट्स में भी लाना है। दूसरी चीज, जब बच्चा 12 साल 13 साल 14 साल का होता है, तो मैक्सिमम, जैसे इंडिया का है अभी, बहुत सारी अच्छी फैमिली है, बहुत सारी नहीं भी है, तो हमें स्कूल में भी, गवर्नमेंट में भी, और ऊपर भी हाई लेवल पे जो कैंपस हैं उनमें भी फैसिलिटी में हम लचर हैं। लचर का मतलब हम पिछड़े हुए हैं। जैसे भाई एक स्टेज होती है, घर में 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा स्पोर्ट्स करता है और 3 बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो इक्वल है, उनका बराबर बैठता है। भाई एक बच्चा स्पोर्ट्स करने जा रहा है और नेशनल स्टेट लेवल पे खेल रहा है, तो उसके 4-5 हजार रुपए के जूते आते हैं, और यहाँ 5 हजार के जूते में पूरा बच्चा पूरे साल 12वीं पास कर सकता है शूज में, या बुक्स पे जाते हैं। अगर हम जनरल बच्चे को 1 गिलास जूस देते हैं तो काम तो वो पीते भी नहीं तो भी काम चल जाएगा, अगर 1 गिलास दूध पी के। यहाँ बच्चे का मतलब 3 डबल ज्यादा खर्चा है, और अगर उसका अच्छा कर रहा है तो उसके इक्विपमेंट। तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट के सामने रखी थी काफी सालों से। हमारे महाबली सतपाल जी इस चीज के लिए फाइट करते रहे, शुरू से दिल्ली को बढ़िया इक्विपमेंट चीजें देते रहे, तो उसमें सुधार हुआ। और अब केजरीवाल जी ने आके ना एक स्कीम स्टार्ट कर दी कि भाई जो बच्चा स्टेट लेवल पे है 17 साल का, उसको 3 लाख रुपया देते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली 2-3 साल पहले शुरू करी, उससे काफी जो हमारी नीचे वाली बेल्ट है बहुत तगड़ी इंप्रूव होगी। 14 ईयर का है तो उसे हम 2 लाख देंगे, ऑल इंडिया में चैंपियन है तो हम उसे 16 लाख रुपीज देंगे। ये फाइनेंशियल जो सपोर्ट है ये बढ़ाए। साथ में अगर हमारी आपकी आवाज ऊपर तक चली जाए कि भाई बच्चा जब बेफिक्र हो जाएगा जॉब के लिए कि भाई वो क्या करेगा। हम सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें पता है भाई हमने इंजीनियरिंग में डाला 4 साल 5 साल, या एमबीबीएस में डाला, या मान लो पर्टिकुलर कोर्स करा रहे हैं, तो उससे उनका फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन स्पोर्ट्स में डालने के बाद आज भी समाज में ये चीज है कि कहीं स्पोर्ट्स में जाने के बाद कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन मेरा जो जर्नी रहा है, मैंने जो बच्चे ट्रेंड किए हैं, मेरे पास स्पोर्ट्समैन बच्चे आईएएस बने। तो जिनको मैं 9th में परसेंटेज थी 55, 12th में आई और उसकी 97, और वो आईएएस बना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स करने से उनका जो दिमाग है वो खराब हो जाता है, या मान लो उनकी परसेंटेज डाउन रह सकती है, बल्कि हमारी काम करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम और ज्यादा सक्षम हो जाते हैं, हम और ज्यादा संयमफुल हो जाते हैं, नियमफुल हो जाते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं। और हमें ना, जब हम अपने बच्चे को स्पोर्ट्स कराएं, या कोई भी पेरेंट, समाज का कोई भी आदमी, तो वो ना, स्पोर्ट्स एक पैशन है, वो एक कोर्स है 2 साल का कि भाई 2 साल में हमारी 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगी, नहीं। एक जर्नी है, 12 से 15 साल 13 साल। आज जो भी चैंपियन बने, आज रवि दहिया जी सिल्वर मेडल जीते, हमारे छत्रसाल स्टेडियम के हैं, रोज का हमारा मिलना जानना है, तो वो कोई आज नहीं बने, उनको 8-10 साल हो गए त्याग करते हुए, उनके पिताजी को त्याग करते हुए, और 10 साल खर्चा करते हुए उस लेवल पे तो एक प्लेयर तैयार हुआ है। आज नीरज चोपड़ा का हम पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड देखें, 6 साल से वो इंडिया कैंप में है, वहां पे कोच नायर जी हैं, हमारे और भी जो हैं चीफ कोचेस थे, बहादुर सिंह जी थे। मतलब 1 साल से तो उन्होंने फोन भी टच नहीं किया। कहीं भी डाइवर्ट हो सकते हैं, मान लो। और जो रेजिडेंशियल कैंप है वो बहुत जरूरी है हर स्टेट में। आपको जब तक रेजिडेंशियल कैंप नहीं, हमने ट्रेन करके भेजा, बच्चा बस में जा रहा है, कहीं और चीज हो जाए, मान लो आप, हमने तो यहाँ समझा के भेजा कि आज खाना ये है, कल और कुछ, वो कुछ और खा पी ले, उसका दिमाग कहीं डाइवर्ट हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी जिन्होंने भी अभी बोला, मैंने सबको ही सुना है, सभी लोगों ने बहुत अच्छे व्यू दिए हैं अपनी तरफ से, और हर एक के अपने विचार हैं। तो मैं तो कोचिंग से थोड़ा सा ज्यादा जुड़ गया हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज पे थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ कि भाई ये चीजें होती है, या फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत जरूरी है। 80% बच्चा जिसके पास ठीक से इक्विपमेंट नहीं हो पाते, खाना नहीं हो पाता, और वो बच्चा स्पोर्ट्स छोड़ जाता है, फिर वो आवारागर्दी की तरफ जाता है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी को भी, या बच्चा जहाँ स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। अब दिल्ली में, या मान लो मुंबई में, या ऑल इंडिया में कोई बच्चा फर्स्ट आ जाता है, तो मीडिया उसको कहाँ ले जाती है, भाई ऑल इंडिया सीबीएसई टॉपर। तो ये हर गेम में होना चाहिए कि भाई एथलेटिक्स में किसी एक इवेंट में बच्चा टॉपर है, तो उसकी भी जागरूकता होनी चाहिए, मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, समाज के थ्रू, तो उसको एक मिलेगा। बाकी रही टैलेंट की बात, तो हम देखो हर चीज में आगे हैं इंडियंस,
और टैलेंट में हम बहुत आगे हैं, बस राइट वे मिल जाए। नीचे से कोचिस एजुकेशन स्टार्ट हुआ है 2-3 सालों से एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, प्री लेवल 1, लेवल 1, NIS चलता है, या मान लो BPEd, MPEd, MPhil, जो भी एजुकेशन पॉलिसी है वो और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो उससे क्या होगा कि हम लोग बचपन में ही बच्चे को ठीक से सही टाइम पे सही इवेंट की गाइडेंस दे पाएंगे, या सही गेम की आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि भाई बच्चा ये है। इस पे भी जोर देना चाहिए। और बाकी एजुकेशन पॉलिसी में 2 पीरियड 1 पीरियड से काम नहीं चलने वाला है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि भाई एटलीस्ट 40-45 मिनट बिफोर मॉर्निंग असेंबली जो होना चाहिए। जैसे कि स्वाति ने बताया, उस स्कूल में है, मैंने उसको वहीं से ट्रेंड करा, वहीं टीचर बनी। वो 45 मिनट 40 मिनट का बिफोर असेंबली एक पीरियड देते हैं कि आप आइए, ये चीजें कीजिए। फिर असेंबली में फिटनेस एक्टिविटी है, मास पीटी है, जनरल जॉगिंग है, मेडिटेशन है, लाफिंग थेरेपी, बहुत सारी चीजें हैं। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई 2 चीज है, वो होगा। फिर जनरल पीरियड में आइडेंटिफिकेशन स्कूल से ही होगा ओलंपियन का। अगर आप 10-12, आप जैसे स्कूल में, हमारी दिल्ली में क्या पॉलिसी हुई अभी की, अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। हम लोग नेक्स्ट ईयर 6 से ही, मनीष सिसोदिया जी पूरी तरह इस पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को अभी इम्प्रूव करा है फिलहाल में। तो उसमें वो 6 क्लास से बच्चों को लेंगे, और बाई चांस अगर 2024, 28, 32 तक दिल्ली से ही कई मेडलिस्ट निकलेंगे। जो पॉलिसी जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और हर गवर्नमेंट करेगी तो मिलेगा। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, और जिन्होंने भी सीनियर जूनियर अभी बहुत अच्छा बोला, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बोलने के लिए। लगभग रमन जी के वक्तव्य में एक लघु स्पोर्ट्स पॉलिसी का हम लोग दर्शन कर पाए। सभी आयामों को उन्होंने एक, बिकॉज वो उसमें बिंधे हुए हैं और उन्होंने सारी बातों को लिखा। मैं इस सत्र का समापन करने के लिए मैं जिग्ना खोयानी जी को निमंत्रित करूंगा, क्योंकि एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के पर्सपेक्टिव से कि किस प्रकार से सरकारें बड़े लेवल पे तो कार्य कर रही हैं, बट हाउ कैन अ स्कूल कैन रियली बोल्स्टर इट्स स्पोर्टिंग क्वेश्चन and use some of the beautiful aspects which Pradeep Singh ji, which Ramesh Kumar ji, which Raman ji, everyone has talked about. जी अगर हाँ, जैसे अब मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग है, यहाँ पे जो बच्चा नेशनल लेवल पे परफॉर्म करता है या मेडल देता है, उसकी फीस माफ कर दी जाती है। तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है। हम भी मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम, एक बच्चा स्टेट नेशनल लेवल पे तो 7,000 कहाँ से अफोर्ड करेगा, 5,000 4,000 जो भी उसकी पर्टिकुलर क्लास की फीस होती है। तो ऐसा दूसरे स्कूलों को भी होना चाहिए कि भाई वो 3 डबल तो ऐसे ही खर्च कर रहा है, अपनी स्टडी का लॉस कर रहा है, और चीजें हैं तो बेनिफिशियल कुछ ना कुछ स्कूल या समाज को भी देना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, सॉरी फॉर इंटरप्ट। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जिस तरह से हम डिफेंस फोर्सेस के प्रति एक राष्ट्र का भाव है कि जय जवान जय किसान, तो उसी प्रकार से स्पोर्ट्स पर्सन के प्रति भी एक राष्ट्रीय जागरूकता बने। ये बात रमन जी ने बड़े सुंदर, और ये बड़े जीवन भर की तपश्चर्या है। यू हैव टू स्टार्ट एट अ वेरी यंग एज, 3 साल की उम्र से, और 6 साल 10 साल। आप कह रहे हो कि ओलंपियाड वाले ने, नीरज चोपड़ा जी ने साल भर से फोन तक नहीं छुआ। तो ऐसी तपश्चर्या करने का, जो ये तो हम कथाओं में ही सुनते थे कि भाई ऋषि मुनि तपश्चर्या कर रहे हैं। पढ़ लिख के एक IAS बन सकते हैं, हाईएस्ट पोस्ट। IAS जी हंसेंगे तो करोड़ों रुपए नहीं मिलेंगे। नीरज चोपड़ा जी अगर हंस गए ना किसी कंपनी के लिए, तो कई सालों तक कितने करोड़ रुपए मिलेंगे। तो डिफरेंस है। एजुकेशन और स्पोर्ट्स को, दोनों को महत्वपूर्ण हमें बराबर देना चाहिए, और अगर हम देंगे तो हम टॉपर भी बनेंगे लिस्ट में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मे बी आई वुड रिक्वेस्ट मैडम जिग्ना खोयानी टू कम इन एंड शेयर हर व्यूज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मैडम जिग्ना खोयानी। Yes. Yes. Like I've been listening to everybody, and like Pradeep sir said, how we as a school have been, so instrumental in doing what is required for the children. We have Pradeep sir, who's our sports coordinator, and he's won laurels for the school. He's been there for the school since a long time. He's taken children to Germany for skating. He has proved a lot of things. But yes, when I heard all the sports person out here, I also remembered my days. I used to play lawn tennis and I used to play dodgeball. And being a girls' school, we used to have this sir who was so strict with us.
And those were the days when you would love to listen to your sports teacher. Your parents were, like all the sports people said, parents need to give that time. And I remember my mom running behind us 3 children, you know, giving that time, ensuring that okay, my child bhale district level khela to kya ho gaya, but that was also a pride. And today, when there are so many opportunities, I don't really understand, or you know, maybe that awareness is not there, that why can the parents not spare that time for their children. Yeah, I listen to a lot of schools telling children do not show attendance online in PE. Children do not show attendance online in music, or for that matter, dance. But if education has taken a change and has come online, why can we not do it? How do you think these Olympiad, you know, chosen ones, when they went there, how do you think did they keep their fitness if the ground was not available? How did they reach out to their coaches? I'm sure most of the sports teachers here know that what was more important rather than playing the sport was to keep the fitness up. Am I correct? The sport teachers would actually be able to answer that. Today, when I see my daughter playing badminton, but this person who takes her badminton, and he keeps on telling me, no, ma'am, घर पे fitness important है. So if we as people who want our children to grow, and we understand there are no hurdles that a sports person can't come up. You know, these people, when I read about Shubhankar Dey, a child who ran away from home just to play the sport. If you read about Mary Kom, you read about Neeraj Chopra, what all has he not gone through? And a youngest person who's brought a medal home and a gold medal home. So I don't think, you know, any hurdle, once a person makes up a mind, and that is what sports teaches us. You may fall down 10,000 times, but you can rise up. And that is such an important lesson of life. And once again, a hearty thank you to Rethink India Foundation, Raghav sir, Surbhi ma'am, amazing. Today's discussion has opened so many arenas, and I am requesting to all these parents who are going to listen live to this, that yes, please listen to these people who I'm sure when I look at them, look at their fitness, they eat, drink, sleep, sports. I see when I see Pradeep sir himself, 4 baje subah utte hain, and he's still doing that fitness for his kids, and it's wonderful, it's lovely. I'm sure Swati Singhal ma'am, amazing to see a female PE teacher. I am so flabbergasted. So thank you once again, and these sports teachers keep India going, and Atma Namaste to all of you, that you know you take care of our kids and the future generation. दयानंद जी जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे दयानंद जी इस सत्र में एक छोटी सी आहुति. Thank you Jigna ma'am for such a lovely exhortation, because without the administrators taking the lead and recognizing that पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब. I think this is the showstopper statement by Pradeep Singh sir, and I think this needs to be inscribed. Yes, it should be highlighted. Sir, I want to add one more thing in this. If we want to improve our sports in our country, तो सबसे पहले हमको हमारे जो सोसाइटी के मेंबर्स है, सोसाइटी के मेंबर्स में हम खुद, जो हमारे समझो हमारे घर में मेरे पापा है, दादा है, दादी है, उनको भी कोई ना कोई एक्टिविटी करना है, तो ही हमारे घर पे हमारा बच्चा एक्टिविटी करेगा. मीन सुबह वॉक पे जाए, जॉग पे जाए, रन करे, खेले, जो कर सकता है. अगर वो अपने दिनचर्या में एक एक्टिविटी वो करते रहेंगे, तो उनके घर पे, उनके सोसाइटी में बाकी बच्चे उनको देख के करना चालू हो जाएगा. ऑलमोस्ट ऑल slowly whole India, whole country is going to aware about fitness and sports. अगर समझो हम बैठे रहेंगे और बच्चों को ऑर्डर देंगे नहीं जाओ खेल के आओ, तो वो नहीं पूरा इंडिया में. Take my advice, I'm not using it. आपको अवेयर करेंगे और हम खुद खेलेंगे और हम खुद करेंगे, चाहे वो 80 इयर्स के हो, चाहे 60 के हो, चाहे 45 इयर्स को, चाहे 10 ईयर को, चाहे 5 इयर्स को. अंतिम आहुति का समय है. मैं दयानंद जी से निवेदन करूंगा, यज्ञ में जजमान लोग आहुतियां देते हैं, तो अंतिम आहुति में सूक्ष्म सारांश वक्तव्य दयानंद जी अगर आप देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी. हाँ जी सर, आई एम ऑडिबल? या लाउड एंड क्लियर, प्लीज. हाँ जी सर, नमस्कार एवरीवन. दयानंद दिस साइड, फिजिकल एजुकेशन टीचर
कोलंबिया फाउंडेशन स्कूल, विकासपुरी, दिल्ली। Yes, sir. और सर इसके अलावा मैं ताइक्वांडो लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। ताइक्वांडो में इंटरनेशनल रेफरी हूँ और दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। Taekwondo. इसके अलावा फेडरेशन है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो काउंसिल, उसमें फाउंडर हूँ मैं, डायरेक्टर हूँ। और सर जैसे कि बताया, स्कूल में तो हम लगे हुए हैं। स्कूल के अलावा जैसे ताइक्वांडो है तो हम लोग बाहर भी करवा रहे हैं, एकेडमियाँ चल रही है हमारी, और काफ़ी सारे कोचेस दिल्ली में जो जुड़े हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं मेहनत। और इसके अलावा जैसे भाई जो पेएबल बच्चे हैं वो तो देखो कर सकता है सर, और जिसके हैं पेरेंट्स वगैरह करने वाले तो स्टेडियम में भी जाके गेम कर सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने फ्री सेंटर्स भी यहाँ पे दिल्ली में कर रखा है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें 2-3 स्कूल्स हैं जो हॉल वाले, इंडोर हॉल वाले स्कूल, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या कर रखे कि हमें स्कूल दे रखे, इक्विपमेंट वगैरह हम लोगों ने कर रखे हैं। और वहाँ आप बिलीव करोगे बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जैसे मम्मी वगैरह हैं, घरों में बर्तन मांज के गुजारा कर रही हैं, पेरेंट्स हैं कोई रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो हम उनमें भी कर रहे हैं। तो हम सारा कुछ कहें कि गवर्नमेंट करे, सारा कुछ करे, कहीं ना कहीं सर ये हमारा भी दायित्व है, हम लोग भी करें जितना हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम कोच है तो हम कोचिंग लेवल का करें, हम नॉर्मल भी हैं तो अपने घर के बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं, आस पड़ोस के बच्चों को कर सकते हैं कि भाई गेम के लिए इतना नहीं कर सकते, स्कूल लेके जा सकते हैं। भाई हमारे नियर बाय पार्क है, हम सोचे कि सारा कुछ गवर्नमेंट करे जी तो वो पॉसिबल नहीं है सर। कहीं ना कहीं हमें खुद एफर्ट्स लगाना पड़ेगा जितने हम जुड़े हैं, क्योंकि सर यहाँ तो चलो मोस्टली हम एजुकेशन लाइन से या स्पोर्ट्स लाइन से, हम उनको भी अपने साथ में रखें कि जो कुछ फी पे कर सकता है बच्चों के लिए, कोई और एफर्ट्स लगा सकता है, उनको भी जोड़े अपने साथ में, और धीरे धीरे करेंगे तो सर होगा जी। ठीक है सर। अभी चलो नीरज चोपड़ा का मेडल आया, हमें बहुत खुशी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ओलंपिक में गए हैं जिन्होंने अपनी जी जान से मेहनत करी सर, ठीक है, मेडल नहीं आया, हम उनको नहीं जानते, तो हमारे लिए सर सारे उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। अब ये कि नीरज चोपड़ा ने ऐसा कर दिया कि हम कभी भूल नहीं सकते, एक इतिहास बना दिया, और ऐसे बहुत सारे हैं जो लगे हुए हैं और इतिहास बनाने के लिए। जी बहुत तो बहुत बस हमें धन्यवाद दयानंद जी, आपने आगे जो भी बात ऐसे ही करते कही। रहेंगे सर। जी थैंक यू वेरी मच सर। I would like to add an aspect here, a very interesting observation that all the motivation movies in Bollywood are based on sports. You know, and I feel schools में अब चक दे इंडिया, सूरमा, दिल बोले हडीपा, all Iqbal, these movies are based on sports and instilling motivation to the core. So sports को highlight करने से प्रदीप सर ने भी कहा और रमन झा सर ने भी कहा कि उसकी एक उस स्पोर्ट्स को एक हाईलाइट करना एज अ सेलिब्रिटी, यू नो, एज अ सेलिब्रेशन, एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये मूवीज के माध्यम से जो स्पोर्टी डॉक्टर सुरभि, मूवीज आपने जो बात कही, कहीं ना कहीं ये भी एक बात आनी चाहिए कि मल्टी करोड़ की ये मूवीज बनती हैं, उतना मुनाफा कमाती हैं, पर ये प्रश्न भी वहां रखना चाहिए कि भाई जिस स्क्रिप्ट पर, जिस स्पोर्ट्स पे आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो क्या जो दयानंद जी कह रहे हैं, क्या आपने उस स्पोर्ट्स के लिए उसका 10वां हिस्सा भी आपने उसके लिए इन्वेस्ट किया है? क्या उस फिल्म के नाम से ही आप एक एकेडमी बना दीजिए भैया, सारा पैसा अपने पास ही लेकर रख जाएंगे, उस फिल्म को मिल्खा सिंह जी पर इतनी अच्छी फिल्म बनी, उसमें जितना पैसा कमा, तो हमारा ही निवेदन इस मंच के माध्यम से हमारी वित्त मंत्री जी को भी रहेगा कि भाई अगर स्पोर्ट्स के ऊपर अगर कोई फिल्म बन रही है तो उन पर एक स्पेशल सरचार्ज लगे, उन्हीं की स्वायत्तता से, कि आप इतना पैसा उस स्पोर्ट के लिए खर्च करिए, क्योंकि तभी एक सहकार बन पाएगा। आम आदमी भी वो टिकट खर्च करके वो इसीलिए जाता है क्योंकि उसके दिल में टीस है, वो मेहनत मजदूरी करके वो टिकट का पैसा देता है, पर जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसका कुछ हिस्सा हमारे इन स्पोर्टिंग टैलेंट के लिए जाना चाहिए, जो दयानंद जी ने कहा। और एक और बात जो मुझे इसमें से निकल कर आई, जो हम अपने मंच से प्रयास करेंगे सभी विद्यालयों को, कि हर बच्चा अलग अलग सामाजिक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, तो हर विद्यालय एक तरह का स्पोर्ट्स फंड भी क्रिएट करे। और जैसा कि गुरु शिष्य परंपरा की बात रमन जी ने कही कि गुरु बताएगा कि भाई तू कौन सा स्पोर्ट खेलेगा, लगान पिक्चर में कौन कहाँ खड़ा होगा, वो गुरु बताएगा। ये नहीं कि मैं ये करना चाहता हूँ, चाहत अपनी जगह है, पर गुरु बताता है कि तुम्हारी जो
क्षमता है वो उस तरफ है। तो मे बी अ स्पोर्टिंग फंड एट द स्कूल लेवल वेयर एवरीवन कंट्रीब्यूट्स, और जो बच्चे वास्तव में उत्कर्ष हैं, आगे हैं, तो उस फंड से उनको सपोर्ट किया जा सके। 4-5 हजार के जूते की बात कही कि भाई एक स्पोर्ट वाले बच्चे पर खर्चा है, तो जैसे साझापन हो, सरकार के रूप से भी हो, और जो हमारे संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान है भारतवर्ष में, वही प्राण हुआ करते थे। 1000-3000 बच्चा पढ़ता है, तो सभी में स्पोर्ट्स की एक गति आए, एक प्रेरणा आए। भाई मैं नहीं खेल सकता तो मैं अपनी पॉकेट मनी का एक आइसक्रीम नहीं खाऊंगा एक हफ्ते की, पर उसको मैं अपने स्पोर्ट्स फंड में दान करूंगा। दान नहीं है, इट इज लाइक अ कलेक्टिव एस्पेक्ट। आई थिंक रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे सारे गुरुओं ने साफ कह दिया, एक माहौल बनाने की कमी है। और शायद ये जो हमारे भाला फेंककर जैवलिन का जो एंथुसियाज्म हमारे नीरज चोपड़ा जी ने 87.58 का जो कीर्तिमान स्थापित किया है, हम सब मिलकर उस भाले को उस नोक की तरह, और जैसा कि रमन जी ने कहा कि अगले 4 साल की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए और एक भारत में एक स्पोर्टिंग रेवोल्यूशन आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालकर आज रविवार के दिन सब जुड़े आज के इस सत्र में, और हम इस यात्रा को अनवरत बढ़ाए रखेंगे। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एडू स्पोर्ट्स राउंड टेबल। एंड रमेश जी, आपका बहुत बहुत विशिष्ट धन्यवाद, आपने किस प्रकार से हरियाणा के स्मॉल क्यूबा की बात आपने कही, बहुत सुंदर, बहुत ही I would say, and we will connect with you. We will continue having these sporty Sundays going forward, और इस पूरे कॉन्वर्सेशन को और डीपर लेवल पे हम ले जाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। एंड लेट्स होप ये टोक्यो 2020 का जो आज समापन समारोह हुआ है, दिस इज द एंड ऑफ अ ग्रैंड बिगिनिंग फॉर आवर कंट्री, कि 47वें स्थान से हम शायद एक लीप फॉरवर्ड करें, और मे बी टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, व्हाटएवर, जो स्वाति सिंघल जी ने भी कहा कि हम प्रयास जोड़ कर आगे बढ़ें। इसी आशा के साथ, इसी भावना के साथ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।